हेलो बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्चुअली समझने से पहले हम क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैसेस के कुछ लॉज हैं जो कि इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं काइनेटिक थ्योरी समझने से पहले। तो जो पहला लॉ हमारे पास आता है जो हमें समझना है वो है बॉयल्स लॉ, राइट। तो बॉयल्स लॉ जो गैस के लिए है वो ये है कि अगर हम कोई गैस लेते हैं, ओके, और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास है कोई गैस चैम्बर है, इसके अंदर गैस हमने भरी हुई है और अगर इस पर प्रेशर लगाते हैं बाहर से, राइट, तो ये पिस्टन जो होगा यहाँ से वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो जो गैस इतनी फैली थी वो कम कम होकर इतनी रह जाएगी। यानी कि जब प्रेशर बढ़ता है तो कह सकते हैं वॉल्यूम घटता है, ओके। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, राइट। ये हमको पता चल गया। या और हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो एज प्रेशर इंक्रीजेस volume decreases, or you can say as pressure decreases it means volume increases. So that gives me a graph between P and V. So as pressure increases volume decreases, okay. So it goes like that, or you can say like this, right. Similarly, there is another law which is called Charles law. Charles law says that volume of a gas is directly proportional to temperature. It means as temperature increases, volume increases. Like suppose you have a piston here and there is a gas inside it, cylinder. So when you give some heat to it, its temperature increases. So temperature increases, or as temperature increases, this piston will go up. Or you can say that the volume of the gas increases, right? So the temperature is directly proportional to volume, or volume is directly proportional to temperature, you can write. So you can say that volume will increase as temperature will increase. Okay. So you can combine these laws. Okay. So you can say that V is directly proportional to T and V is inversely proportional to P. So by combining these equations, equation 1 and 2, what you get that V is directly proportional to T but inversely proportional to P. Or you can write this as Vp or Pv is directly proportional to T. Okay. Or you can say it is equal to some constant. So Pv is equal to some constant and that constant turn out to be mu and R. Right. So this equation what we'll get is called ideal gas equation, right? That is the first thing. Second thing we need to know is that these are the two graphs between pressure and volume, okay. And another graph you can form for volume and temperature is as temperature increases volume increases, so it goes like this, okay. So when you combine these graph it would look like this. It means that the volume goes up as temperature increases, right? So what you can write here is, if there is another way of writing it and we have a graph between P and V, we know that that graph is like that. But as temperature goes up, graph would look like this, okay. So here in these two terms, in these two graphs, you can say 1 and 2. So graph 2 will have higher temperature than
graph at 1. So you can write T1 is less than T2, right? नाउ हमें ये चीज़ ध्यान रखना है अभी कि हमारे पास दो तरह की गैसेस हैं, एक तो है आइडल गैसेस और जो दूसरी गैसेस है उसको हम कहते हैं रियल गैसेस, राइट? तो डेली लाइफ में हमें जो गैसेस मिलती हैं वो आइडल गैसेस नहीं होती बल्कि रियल गैसेस ही होती है। आइडल गैस मोर और लेस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम गैसेस के फिनोमेना को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट? ये केवल एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ताकि लाइफ हमारी आसान हो पाए, चीज़ों को समझने में हमें ईजी हो। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि हमें पता चला भाई जो आपके पास आइडल गैस की इक्वेशन आ गया वो पी वी इजिकल टू म्यू आर टी है, ओके? ये जो इक्वेशन है ये आइडल गैस की है, दैट्स फॉर आइडल गैस। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस gases are not idle, so they behave not as idle but non-ideal, so those gases are called real gases, okay? So for real gases this equation doesn't hold true, so in that case pv is not equal to mu rt. So there are two cases arises, either pv will be less than mu rt, okay, or pv is greater than mu rt. In both cases these behaviors are the behavior for the real gases, okay? तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम एक ही तरह से लिखने की कोशिश करते हैं सो दैट ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये तीन 1 2 3 3 इक्वेशन जो है एक ही में हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, एक नया एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड जेड। इसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट? और इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू जेड इंटू म्यू आर टी। So when this z is equal to 1, then this equation will acquire the form pv is equal to mu rt because z become 1, okay? Similarly, if z is less than 1, then in that case pv will become less than mu rt, and if z is greater than 1, then this equation will become greater than mu rt, okay? So now हम ये ट्राई करेंगे क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि कोई भी जो इक्वेशन है चाहे वो आइडल गैस है या रियल गैस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी वी इजिकल टू जेड म्यू आर टी। So in that case z can be written as pv divided by mu rt, okay? So you can write it as, so now suppose we want to draw a graph between volume, support pressure and z, but this z is here pv divided by mu rt, okay? We know that this z is equal to 1 for ideal gas, okay? For ideal gas, so suppose this is the value where z is equal to 1, but we know that most of the gases are not ideal but they are real gases, okay? So suppose we take some gases, for example hydrogen gas, this graph looked like this, okay? And for helium it looked like this. Similarly for nitrogen gas, this graph looked like this, and this is the graph for oxygen gas, right? Carbon dioxide it is like this. So you can easily see that for hydrogen gas and helium gas z is greater than 1 because it is at the upper part of this z, because here z is equal to 1, और हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसेस वो दोनों z इज इक्वल टू 1 से ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब z की वैल्यू यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, ओके? सिमिलरली अगर तुम
नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो Z की वैल्यू जो है <<1 आ रही है। ओके, और हमको एक चीज़ पता चल गया है यहाँ पर कि जो आपके पास PV है अपॉन म्यू आर टी वो इजिकल टू Z है। Z की वैल्यू 1 है फॉर आइडियल गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम हमारे पास है आइडियल गैस के लिए वो म्यू आर टी अपॉन पी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास मैंने एक प्रेशर की कोई पर्टिकुलर प्रेशर ले लिया। सपोज मैं हाइड्रोजन गैस के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस के लिए एट पर्टिकुलर पॉइंट पी जेड की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। लेकिन आइडियल गैस के लिए 1 है, तो आइडियल गैस के लिए 1 होने पर उसका जो वॉल्यूम निकल के आता है आइडियल गैस के लिए वो निकल के आता है म्यू आर टी डिवाइड बाई पी। पी हमारे लिए दोनों में सेम है। सिमिलरली यहाँ पर जो ये वॉल्यूम निकल के आता है रियल गैस के लिए वो निकल के आता है म्यू आर टी अपॉन पी। ओके, लेकिन इसके अंदर एक z की वैल्यू भी इंक्लूड है। यहाँ z इजिकल टू 1 है। ओके, यहाँ पर भी z है, लेकिन z इजिकल टू यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ z क्या है, यहाँ z ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आइडल दिस वॉल्यूम इज फॉर आइडल गैस। ठीक है, लेकिन दैट इज फॉर आइडल गैस, बट रियल गैस के लिए ये वैल्यू निकल के आती है म्यू आर टी अपॉन पी इंटू जेड। तो अगर यहाँ z की वैल्यू <<1 होती है तो आपका जो वॉल्यूम होता है रियल गैस के लिए वो आर टी अपॉन पी आता है, म्यू आर टी अपॉन पी आता है। और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इन दैट केस जो वॉल्यूम रियल गैस के लिए निकल के आता है वो ग्रेटर देन म्यू आर टी बाई पी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब z <<1 है तो रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम आ रहा है वो <<म्यू आर टी आता है, वेयर म्यू आर टी अपॉन पी जो है वो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम है। तो हम कह सकते हैं कि जब z की वैल्यू 1 से लेस होती है तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम आता है। सिमिलरली हियर जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है जब z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो ग्रेटर निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ रियल आइडियल गैस। ओके, इसका मतलब यहाँ क्या है कि रियल गैसेस इस केस में क्योंकि उनका वॉल्यूम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया वो आइडियल गैस से ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि रियल गैस जो है वो एक्सपेंड करती है। कह सकते हैं कि रियल गैस हियर एक्सपेंड्स मोर देन आइडियल गैस। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो रियल गैस है वो कंप्रेस होती है मोर देन आइडियल गैस। क्योंकि हमारे पास अधिकतर गैसेस तुम देखोगे z इक्वल टू लेस में आ रही है, यहाँ ये जो रीजन ये नजर आ रहा है ये कंप्रेस वाला रीजन है, जबकि ये रीजन एक्सपेंड का है। तो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो केवल दो गैस में ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम में, जबकि कंप्रेशन जो हो रहा है वो अधिकतर गैस में हो रहा है। तो इस z को जो हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्योंकि ये बता रहा है कि गैस कितनी कंप्रेस हो रही है या एक्सपेंड हो रही है कंपेयर्ड टू द आइडियल गैस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, अब हम कर देंगे क्या यहाँ पर, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम का बेसिकली प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वॉल्यूम पे वो निकाला और देखा हमने कि आइडियल गैस के कंपैरिजन में रियल गैस कितनी कंप्रेस या एक्सपेंड होती है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम z जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू p हम कंसिडर करते हैं विद चेंजिंग इन टेम्परेचर। सपोज मैं एक पर्टिकुलर गैस ले लेता हूँ, हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल ले लेता हूँ या सपोज ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो लेट अस से मेरे पास मैंने z लिया। ओके, यहाँ z की वैल्यू जो है 1 के आसपास है।
Z=1 है, और ये प्रेशर है जो आपका बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन गैस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सपोज ये ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है T। अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, राइट। तो जैसे जैसे इंक्रीज करता हूँ ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होने लगता है। मान लो ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2 है, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दैट बिकम लाइक दिस T3, अगेन इट गोज लाइक दिस T4। यानी कि ग्राफ जो है मोर एंड मोर आइडल गैस लाइन की तरफ अप्रोच करता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रियल गैसेस लाइक हियर इन केस ऑक्सीजन, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है, तो रियल गैसेस लाइक ऑक्सीजन ओके behave या starts behaving more and more like an ideal gas। ठीक है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आइडियल गैस का कंसेप्ट हमने समझने की कोशिश करी, उसके लिए हम प्रेशर एग्जांपल, हम प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे कि एक आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट। तो प्रेशर हम बेसिकली एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by an ideal gas, right। ये हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं। एजम्पशन हमारे पास कुछ ऐसी हैं। पहली एजम्पशन तो यही मान के चलते हैं हम कि जो आपके पास कोई पर्टिकुलर कंटेनर है और कंटेनर में कोई आइडल गैस हमने यहाँ पर भरी हुई है। तो इसके अंदर जो है एक आइडल गैस है जो हमने इसमें भरी है, एनी आइडल गैस। आइडल गैस इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट को समझना आसान है। रियल गैसेस हमने देखा वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं थोड़ी, और वो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफरेंटली बिहेव करती हैं। जबकि आइडल गैस तुम देखोगे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है या टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तब भी इसका जेड की वैल्यू 1 के आसपास है। तो ये आइडली बिहेव करती है। तो इसलिए हम रियल गैसेस को ना करके हम जो प्रेशर का निकालते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन, वो एक आइडल गैस के लिए निकालते हैं। ठीक है, वो हमारे आइडल है समझने के लिए। तो हम ये कंसिडर करते हैं आइडल गैस की कुछ कंडीशंस हैं जो हम इसको समझेंगे। तो पहले यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि जो कंटेनर जिसके अंदर आइडल गैस भरी गई है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ओके, सो यू कैन से द वॉल्यूम occupied by an ideal gas is very small as compared to the volume of the container, volume of the container, that is the first thing। सेकंड चीज़ जो हमें देखना है यहाँ पर कि हमारे पास जो हम ये मान के चलते हैं जो इसमें गैस भरी गई है वो एक इलास्टिक कोलिजन करती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि गैसेस जो है आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्सेस, दूसरी चीज़ें नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है कि उसकी जो एनर्जी है उसको किसी तरह कम हो, राइट, किसी तरह उसमें डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन है बिटवीन द गैस पार्टिकल्स and collision between gas particles and wall of the container, ठीक है, walls of the container is elastic। और तीसरी हम कंसिडर ये कर सकते हैं कंडीशन कि ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा, नो इंटरेक्शन। तो देयर इज नो इंटरेक्शन interaction
between gas particles in the container, राइट। ये कुछ हमारी कंडीशन जो हम मान के चलते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसमें ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो हमें, क्योंकि प्रेशर निकालना है, तो हम मान लीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस जो है फैली हुई है। हमको ये चीज़ पता है कि अगर गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो गैस उस कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है, ठीक है। अगर कम गैस होगी तो भी वो पूरे फैल जाएगी, ज़्यादा होगी तो भी फैलेगी, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम रहेगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब गैस उसके अंदर होगी तो ये गैस क्या करेगी, रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन पे मूव करेंगी, ठीक है, ऐसे करके। कोई स्लो करेगी, कोई तेज करेगी। तो एक कंडीशन और हम इसमें कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं वो रैंडम है, और मतलब उनकी जो वेलोसिटी है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी है, यानी कि कोई बहुत स्लो है, कोई बहुत फास्ट है। ऑन एन एवरेज हम कुछ वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। ये नॉर्मली होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे जब हम इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे सबकी एवरेज वेलोसिटी लेके चलेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये एक डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और सपोज ये कोई जेड डायरेक्शन, राइट। तो पार्टिकल अगर एक्स की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी वी एक्स से जा रहा है। सिमिलरली अगर वाई में जा रहा है तो वी वाई में जा रहा है। तो अगर मान लीजिए जेड नहीं होता, केवल वी एक्स और वी वाई होता, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या निकल के आती, हमको पता है ये जो होती है रिजल्ट, अगर वी है तो वी का स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हमने जब वेक्टर पढ़ रहे थे तब हमें पता है ये कहाँ से आया है, फ्रॉम वेक्टर एडिशन से आया। सो दैट इज फ्रॉम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर वेलोसिटी कंपोनेंट जेड भी है तो उस केस में यहाँ पर एक वी जेड का कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, राइट। और हम ये कंसिडर करेंगे यहाँ पर कि जो वी एक्स वी वाई और जो वी जेड है वो सारी की सारी वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसके जो कंपोनेंट है सेम है हर हर डायरेक्शन पे। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वी एक्स वी वाई जेड को हम वी एक्स ही ले सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो ऊपर आया वो लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस v x square, and there is also vx square. So you can write it as 3 times of vx square, vx square, v square. So vx square is nothing but v square by 3. That is the first expression we get. Okay. But our aim is to find what is the pressure inside the gas chamber due to the collision of this gas particles. Okay. तो हम ये मान के चलते हैं पूरे कंटेनर के अंदर सपोज n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मानते हैं पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, ओके। हालांकि रैंडम मोशन में, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम मानते हैं कि जितने भी एन पार्टिकल्स हैं पूरी गैस चैम्बर में, आधे इधर जा रहे हैं आधे। तो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल है तो आधे इधर जा रहे हैं, मीन्स एन बाई टू पार्टिकल इधर जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि ऐसे एन बाई टू राइट। यानी कि कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्सिस पॉजिटिव है यानी कि वी एक्स, और कुछ पार्टिकल उल्टे जा रहे हैं यानी कि वी एक्स माइनस के साथ। तो अगर आपके पास ये कोई कंटेनर है, ऐसे करके, और यहाँ से एक पार्टिकल अलोंग एक्सिस गया इसकी वेलोसिटी वी एक्स से, टकरा के वापस आया, इसका मास m था, पार्टिकल का मास m था, राइट। उसका जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितना आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा सिंगल पार्टिकल के लिए ध्यान रखना, वो आएगा मास इंटू वी एक्स माइनस टकराने पे हो गया वो माइनस में m इंटू वी एक्स, राइट। तो जो टोटल चेंज हुआ वो आया m वी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो m वी एक्स, that become twice of m v x, that is change in momentum of single particle. Okay, so change in momentum, that is a for single particle. So mass, so what is the force acting on single particle during the collision,
सपोज ये टकरा के वॉल से टकराया और वापस आया, तो इस कोलिजन में जो पार्टिकल और बॉल के बीच में हुआ उसके बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो जो फोर्स आएगा हमारे पास, फोर्स एक्टिंग for single particle, right? Single gas particle. So that would be change in momentum upon change in time. That is from the second law of thermodynamics. Okay. So that is twice of m vx divided by delta t. But we know there are n number of particles. Okay. So that is the force of single particle. So the force on total particle would be what? The force on total particle would be n by 2 into small f. Why n by 2? Because हाफ पार्टिकल वॉज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हाफ वॉज गोइंग राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर जो टकरा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो इधर से आके टकरा के वापस केवल हाफ पार्टिकल है, क्योंकि कुछ इधर जा रहे होंगे टकरा के वापस आ रहे वो n बाई 2 है, जो टकरा के वापस यूँ आ रहे हैं दैट इज ऑल्सो n बाई 2। तो जो टोटल फोर्स ये लगाएंगे वो n बाई 2 से मल्टीप्लाई करके लगाएंगे। और हमें पता है इसका अगर पूरा वॉल्यूम, इसका एरिया जो है अगर a है, ओके, ये टकरा के यूँ आ रहा है, तो इसका जो हाफ पोर्शन का, क्योंकि हाफ पार्टिकल लेंगे तो हाफ पोर्शन का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, तो ये अगर लेंथ हमारे पास एल है, तो अगर ये डिस्टेंस सपोज मैंने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी एक्स, राइट, तो आपके पास ये वॉल्यूम कितना हो गया, इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर मैं मान के चलता हूँ स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, तो कैपिटल एन हो जाएगा स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, राइट। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हमारा एक्स है, इसमें आ रहा है। तो n बाई 2 कितना हो जाएगा, तो n बाई 2 हो जाएगा स्मॉल एन ए एक्स बाई 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा स्मॉल एन ए एक्स अपॉन 2, और जो फोर्स हमारा निकला है सिंगल पार्टिकल का वो निकला है 2m वी एक्स बाई डेल्टा टी। तो तुम देखोगे इस केस में 2 से 2 कट जाएगा और कुछ और चीज़ें आएंगी वो अभी हम देखते हैं। तो ये आपका फोर्स आया। तो अगर तो कोई कहे यहाँ पर कितना प्रेशर लगाया, तो हमें पता है प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है, उसका जो एरिया है वो ए है ना। तो जो फोर्स हमारे पास आ जाएगा इस केस में वो आ जाएगा, देखिए यहाँ जो प्रेशर आ जाएगा वो आएगा टोटल फोर्स अपॉन एरिया। तो जो टोटल फोर्स अभी हमने निकाला है वो निकाला है एम एन ए एक्स वी एक्स बाई डी टी। सो दैट इज एम एन ए एक्स Vx upon dt. So you can write this as, and 2 is also 2 is cancelled out, so that would be nothing but mn, okay, and a is also there because that is f but divided by a also there, so a is cancelled out, right. So you'll have only m into n x divided by delta t and vx velocity. But we know कि जो distance upon delta t होता है that is also velocity, so that can be written as m into n, that become vx into vx, okay. So that would be m into n vx square you can write. लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो वी एक्स स्क्वायर है वो वी स्क्वायर अपॉन 3 है, ओके। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा निकल के वो आ जाएगा इस केस में m इंटू एन वी स्क्वायर अपॉन 3। तो आपका जो प्रेशर निकल गया गैस के लिए वो आएगा 1/3 m इंटू एन वी स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास अगर हमने डिफाइन किया था n जो था नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम था, अगर आपको ध्यान होगा तो इसे v ले सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 m इंटू एन अपॉन वी, वी स्क्वायर आ जाएगा। इस p को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो आ जाएगा v इंटू पी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू कैपिटल N वी स्क्वायर, राइट। देखिए हमने एक चीज़ पढ़ा है
कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो कि भाई पीवी जो था वो तो म्यू आर टी था। म्यू क्या होता था, ये नंबर ऑफ टन, नंबर ऑफ मोल्स होता था। और मोल कितना होता है, मोल जो होता है पार्टिकल के वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल कितना होता है, जब पार्टिकल या एटम्स या मॉलिक्यूल का नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाता है तो उस सब्सटेंस की उतनी क्वांटिटी को वन मोल कहते हैं, राइट। सो वन मोल मीन्स एन ए नंबर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। सो देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड वन मोल। यानी कि अगर मैं म्यू को 1 लेता हूँ तो एन कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सो पी वी कैन बी रिटन एज PV can be written as, we know that is mu RT, so you can write mu RT, and this PV is nothing but 1/3 m into n v square। लेकिन हमने क्या डिफाइन किया कि म्यू इज इक्वल टू, अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ म्यू को जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो n को मैं क्या लिखूंगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो आपके पास ये आ जाएगा RT इंटू 3 m इंटू एन है वी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, उसका एक सिंगल पार्टिकल का मास स्मॉल है, और अगर हमारे पास ऐसे खूब सारे पार्टिकल आ गए जो कि संख्या में कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास उस सब्सटेंस का मोलर मास आ जाता है, जो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द मोलर मास, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम वी स्क्वायर 3RT, राइट। तो ये जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी वी स्क्वायर वो आ जाएगी 3RT अपॉन कैपिटल एम, और यू कैन राइट v is equal to square root of 3RT by m, okay। सिमिलरली अगर इसको इक्वेशन को वापस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आपको बोलता है 3RT कैन बी रिटन, कैन ऑल्सो बी रिटन है स्मॉल m एंड Na आप उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो वी स्क्वायर, तो आपको इसको लिखा जा सकता है 3R अपॉन Na T इज इक्वल टू स्मॉल m वी स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे Na बाई R बाई Na होता है, इसको हम लिखते हैं KB, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आती है वो आता है वी 3 टाइम्स ऑफ KB/T अपॉन m। यहाँ जो m है ये मोलर मास है, जबकि स्मॉल m जो है ये सिंगल पार्टिकल का मास है, मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो KB हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर KB और R, तो R की वैल्यू होती है 8.314, जबकि KB की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये जूल पर मोल पर केल्विन होता है। सिमिलरली ये भी जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जबकि इसको कहा जाता है रियल गैस कांस्टेंट, जो आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रियल गैस कांस्टेंट कह लो। तो हमें देखो एक चीज़ समझ में आ गया यहाँ पर कि आपके पास जो वेलोसिटी आ गया पार्टिकल की, उसको 3RT अपॉन कैपिटल एम लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट में, या 3KB/T अपॉन स्मॉल m लिखा जा सकता है, राइट। ये जो वैल्यू होती है इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कह सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू भी कहते हैं, दैट इज RMS वैल्यू। सिमिलरली देखो हमारे पास क्या है, पार्टिकल की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी होती है, तो ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है,
और एक होती है एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो स्क्वायर रूट में, जैसे यहाँ पर 3 RT है, 2 RT होती है अपॉन m, या 2 kBT अपॉन स्मॉल m, ऐसे लिख सकते हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबल होती है वो 8 RT अपॉन पाई कैपिटल M होती है। ओके, और इसको 8 kBT अपॉन पाई स्मॉल m भी ले सकते हैं। अगर आप इन सबको कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा जो VRMS है, अगर मैं इसको रेशियो निकालता हूँ V एवरेज के साथ और V मोस्ट प्रोबेबल के साथ, तो पता लगेगा कि भाई kBT/m तो सब में कॉमन है। ओके, तो बचेगा जो कॉमन जो रहेगा वो केवल √3 बचेगा, यहाँ रूट में 8/पाई बचेगा। ओके, जब ओके तो सॉरी, यहाँ पर जो है ये रूट में 2 बचेगा, और जो मोस्ट प्रोबेबल है उसमें 8/पाई बचेगा रूट में, राइट। तो जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1.732 आता है, राइट, जबकि 1.414 आता है। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 22/7 करोगे तो 11 और ये 4 आएगा, 28/11, तो ये कितना आएगा, 11 2 जा पॉइंट आ जाएगा 22, तो 6 5 समथिंग आएगा, ये रूट में आएगा, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे रूट से निकालने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली अगर रूट के अंदर भी रखते हैं तो देखो ये कितना आता है, ये रूट के अंदर आता है 2.5, जबकि ये रूट में 2 आ रहा है, तो यहाँ रूट में 3 है, तो साफ बदल रहा है सबसे बड़ा ये है, फिर दूसरे नंबर पे ये है, और ये सबसे छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी RMS वेलोसिटी है भाई √2 इज ग्रेटर देन रूट में 2.5 एंड विच इज़ ग्रेटर देन √2। तो ये जो आपके पास है ये VRMS वेलोसिटी है, क्योंकि 2.5 जो है वो क्या है, तुम देखोगे ये मोस्ट प्रोबेबल है, तो दैट इज़ VMP, और जो सबसे कम आ रहा है यहाँ पर वो एवरेज वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम मान के चलते हैं पार्टिकल है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैस के, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है RMS वैल्यू, यानी कि ये RMS वैल्यू है, मान लो वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, या कह सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है। तो आपकी जो ग्राफ बनता है उसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये है कि जहाँ आपका ग्राफ पीक कर जाएगा तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आती है, यानी कि पार्टिकल की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वहाँ आएगी जहाँ पर ये आएगा, ये रूट में 2.5। ओके, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो उससे कम आएगा एवरेज रूट में 2, यानी कि सपोज यहाँ कहीं, ओके, तो ये रूट में 2 आएगा, जबकि √3 से ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ कहीं आएगा रूट में 3। तो ये जो वेलोसिटी होगी रूट में 2 ये एवरेज वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी होगी मोस्ट प्रोबेबल होगी, जबकि √3 वाली वेलोसिटी RMS वैल्यू होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको कहते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स। ओके, तो यू कैन से दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a gas of गैस पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, एक रफ आइडिया है ना। तो इसके बाद देखो हम क्या करते हैं इसमें, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे आगे कि इसके अंदर जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आई हैं उसमें कुछ कंसेप्ट आपने देखा होगा, जैसे मोल कंसेप्ट हमने अभी समझा ना, तो हम मोल कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मोल कंसेप्ट है क्या, और इससे फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो मोल कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे सबसे पहला जो लॉ है जो आपको समझना है वो एवोगैड्रो लॉ है। तो एवोगैड्रो लॉ को क्या कहता है कि अगर आपके पास ये कोई वॉल्यूम है, राइट, दो गैस रख लेते हैं, सपोज ये वॉल्यूम V1 है, V है V2 है, दोनों बराबर हैं, V1 सपोज इक्वल टू V2 है, दोनों का टेम्परेचर और वॉल्यूम भी सेम है, सपोज इसका टेम्परेचर T है, इसका भी T है, T1 इज T,
T2 is also T, और वॉल्यूम तो सेम है ही, प्रेशर भी सेम है, सपोज P1 इज P, P2 इज ऑल्सो P। तो एवोगैड्रो ये कहता है कि अगर डिफरेंट गैसेस हैं जिनका इक्वल वॉल्यूम है, प्रेशर टेम्परेचर भी सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट gases at same pressure and temperature have equal number of particles, right? Equal number of particles. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही होंगे। सपोज ये हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब बराबर है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस will be equal to number of particles of oxygen gas at same pressure temperature volume. This is just an example. Okay, तो इसको थोड़ा सा और हम आगे चले जाते हैं। मान लीजिए आपके पर्टिकुलर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जो कि होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और जो वॉल्यूम है उसको हम रख लेते हैं 22.4 लीटर, और टेम्परेचर रख लिया जाता है 0 केल्विन, यानी कि 273.15 केल्विन। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, so 273.15 Kelvin. So at this temperature, these gas, as we know, pressure, temperature, volume are same, so they will have the same number of particles. But now it has a specific name, और ये जो specific name है, that is called Avogadro number. और Avogadro कहते हैं ये जो number of particles निकल के आते हैं, that turn out to be 6.023 into 10⁻23. If it is atoms, then it is atoms. Gas may be in molecular form, so it can be number of molecules. Okay, so it can be this much number of atoms or molecules or particles, whatever, or some gas particles. Okay, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आए वो इतने निकल के आए। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो हमें पता है अगर मान लो किसी पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल किसी गैस के n है, और एवोगैड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 मोल होता है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 12.046 इंटू 10⁻23, ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स है, और हमें पता है एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे विल गेट 2, तो आपको पता चलेगा 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट। ये एक चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरा हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास तुमने पढ़ा होगा, जैसे अब गैसेस है, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, है ना, ऐसे आपने लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, बोरोन लिया, एक्सेट्रा जो भी लिया, तो आपने देखा किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के नीचे एटॉमिक नंबर आता है और ऊपर एटॉमिक मास आता है। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम 1 मोल लेते हैं तो जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही ग्राम हमारा 1 मोल का आता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 ऑफ 1 मोल जो होता है वो 2 ग्राम के बराबर होता है। एक हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन एटम, एटम मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 2 ग्राम्स, राइट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 2 होंगे Na के बराबर, विच इज 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ओके, दैट वुड बी इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ, और इसको जो हम कहते हैं इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना मास है, वो 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, और वो इज इक्वल टू है जो इसका एटॉमिक मास होता है इन ग्राम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस में 2 ग्राम है, तो उतने ग्राम हमारे पास आ गए, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी हैं, इसका मतलब ये स्मॉल m जो है एक सिंगल पार्टिकल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर है। ओके, यानी कैपिटल M m इंटू Na। सेकेंड थिंग हम ये मान सकते हैं कि जो आपके पास म्यू निकल के आ रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ, अगर मैं स्मॉल किसी नंबर किसी मास m0 से डिवाइड करता हूँ, सपोज गिवन मास से, तो भी हमारे पास एक मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
ठीक है। उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालने के दो तरीके हो गए, यानी कि गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल ऐसे हम निकाल सकते हैं। जब हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, हम करेंगे, तो यहाँ ये यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।